Very good morning, students. Yesterday we finished another topic from your English language, which was the report writing. And in today's class, we are going to begin with another form of the language, which is your part of the CBSE, which is the notice writing. Right? Notice, you have seen and you have observed from the very beginning on the notice boards of your school, on the place where something has to be shown. Now this is not your page, but this is a box which is required for a notice, right? So, what is the notice? When is it written? Notice is a written or printed information or the news announcement which are displayed at prominent places or published in newspapers. ठीक है, तो you can printed information displayed at anyway, newspaper, magazine, or the notice boards, right? Any lucrative information which is formal and factual, very important, which is formal and factual. That means based upon the facts. Formal means proper addressing, जिनके लिए आप लिख रहे हैं good morning, good afternoon, one and all, each and everything, and then. And notice is always brief and to the point. Understand? So what is a notice? Notice is nothing but some printed information displayed at newspapers, magazines or notice boards. It is in formal and factual format, and it is always in brief and to the point. That means details are not there. Okay. Understood this much? Alright. Now, there are some important points, or you can call them as tips, which are for notice writing. Listen to which very carefully, or you can rewind it and listen to it again, right? Adhere to the specified word limit of 50 words. 50 words. 50 शब्दों से ज्यादा की आपकी वर्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए. Write the word notice on the top. बहुत जरूरी है कि यहां पर आप नोटिस लिखिए कि ये नोटिस है. Name and place of the school or the organization or the office which is issuing the notice should be mentioned. Give an appropriate heading to the notice. A proper heading, an appropriate heading is always required and a necessity, right? Write the date of issuing the notice. ठीक है? Next, clearly mention the target group
for whom the notice is to be displayed, whether it is for the students, whether it is for the employees, whether it is for the non-academic staff, whether it is the supporting staff, किसके लिए वो नोटिस लिखी जा रही है, ये बात उसमें बताना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। किस पर्पज के लिए नोटिस लिखी जा रही है, ये बात भी उसमें बताना जरूरी है। मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स विच इज डेट, वेन्यू, टाइम, सिग्नेचर, name and designation of the person who is issuing the notice, and put the notice in the box. Get the point? So इतनी सी सिर्फ बात है कि स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट 50 शब्दों की रखनी है। सबसे ऊपर नोटिस लिखा हुआ होना चाहिए। स्कूल जो कि नोटिस दे रहा है उसका नेम और एड्रेस, या फिर जो भी ऑफिस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये नोटिस दे रही है उसका नेम एंड एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट हेडिंग जिससे कि लोगों को पता लगे कि नोटिस किस बारे में लिखी जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, क्लियरली मेंशन द टारगेट ऑफ द ग्रुप। जिस तारीख को नोटिस लिखी जा रही है उसके डेट लिखना बहुत जरूरी है। किस ग्रुप के लिए नोटिस लिखी जा रही है, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए लिखी जा रही है, पढ़ाने वाले टीचरों के लिए लिखी जा रही है, बच्चों के लिए लिखी जा रही है, वो भी बताना जरूरी है। और सारी रेलेवेंट डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, समय, तारीख और जगह। सबसे लास्ट में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर, जो आदमी नोटिस लिख रहा है, और उसके नीचे उसका नाम और उसका ओहदा, उसका पद। हेडमास्टर है तो हेडमास्टर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल लिख रहे हैं। हूसोएवर इज इशूइंग द नोटिस, वो नाम वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोटिस इज ऑलवेज एंड शुड ऑलवेज बी इन द बॉक्स। ठीक है, तो ये देखिए यहां से हम बिगिन करते हैं। थोड़ा सा और सबसे ऊपर, नोटिस के भी ऊपर हम यहीं पर अपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, और उसका एड्रेस ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमने लिखा NOTICE बोर्ड में। सबसे ऊपर वो जो नोटिस, जिस जगह की नोटिस है, स्कूल का नाम, पता, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पता, या ऑफिस का एड्रेस और पता। ठीक, उसके बाद आप सबसे ऊपर यहां पर एक लाइन छोड़ने के बाद यहां पर आप लिखेंगे डेट सबसे टॉप पे। ठीक है, डेट के बाद एक दो लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग। ठीक है, सब हेडिंग माने फॉर विच द नोटिस इज बीइंग रिटन। समझ गए? उसके बाद फॉलोड बाय दिस वुड बी द मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसे इसी पेज में छोटा छोटा लिख के एडजस्ट कर देता हूं, सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, यहां पर मान लीजिए XYZ स्कूल इलाहाबाद। ठीक, यहां आ गया आपका नोटिस, एक लाइन छोड़ दी आपने, यहां आ गई आपकी डेट। इसके बाद एक लाइन और छोड़ दी, एक लाइन और छोड़ दी, दो लाइन। उसके बाद सब हेडिंग जिसके लिए नोटिस लिखा जा रहा है। मान लीजिए कोविड-19 पीरियड। ठीक, उसके बाद आ जाएगी आपकी
main body, main notice, right? This is to inform you all ... etc. ठीक, ये पूरी नोटिस खत्म हो जाने के बाद एक लाइन और छोड़ेंगे आप, और उसके बाद सिग्नेचर। ठीक, सिग्नेचर के नीचे यहां पर मान लीजिए हमने प्रत्युष सिंह साइन कर दिया, और इसके नीचे जिसने साइन किया उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन बॉक्स के अंदर। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात, ओनली दिस मच इज देयर टू लर्न इन द नोटिस राइटिंग। सो डू यू अंडरस्टैंड? ये देखिए, ये आपकी नोटिस इज व्हाट? नोटिस इज अ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड एट न्यूज़पेपर, मैगजीन, notice boards, formal and factual, and it is always brief and to the point. और यहाँ पर आपकी नोटिस जो लिखी, आपने सबसे ऊपर जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम, एक लाइन छोड़ दीजिए, तारीख डाल दीजिए, एक दो लाइन और छोड़ दीजिए, उसके बाद आप सब हेडिंग डाल दीजिए कि किसके लिए नोटिस लिखी जा रही है। जिस मान लीजिए कोविड पीरियड के लिए लिखी जा रही है तो कोविड-19 डाल दी मैंने। उसके बाद दिस इज टू इन्फॉर्म यू, 2-3 लाइन्स में लिख दिया आपने। लीव अ लाइन अगेन, जहां पे नोटिस एंड होगी उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद में साइन, जो आदमी नोटिस लिख रहा है उसका फुल नेम और अथॉरिटी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग। नाउ यू गो एंड प्रैक्टिस द नोटिस राइटिंग as it is very important and it is going to come in your CBSE examination. So you should be very, very punctual and specific about it, right? Thank you. Bye.